हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट इज बायजूस एग्जाम प्रेप। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 22 नवंबर को इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट आया, जिसमें टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 46 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। और वी आर वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी ऑल्सो बिकॉज वी हैव अ स्पेशल गेस्ट फॉर दिस सेशन हु इज आयुष, हु secured AIR 30 in this engineering services examination. You know, it is a very proud moment to be the part of such a thing or such an exam, you can say. And guys, so we will be asking from Ayush that how his journey was, what were the learnings, and how he can guide you for that also, and many other things related to his journey. So first of all, Ayush, I would like to congratulate you, and as Thank you you, sir. made us proud to your parents, Byju's Exam Prep, and all the faculties, that we are proud that you got that success in your ESC exams. So, Ayush, first of all, I would like to ask you, let's tell something about yourself so that our viewers get to know about you. So first of all, sir, thank you, sir, and I'm very grateful to be here. And so my introduction, I belong to Darbhanga, Bihar, and I've done my BTech from MNNIT Allahabad in mechanical engineering, and I graduated there in last year in 2022. And so this year I've secured AI 30 in ESE 2023. Last year I have also attempted for ESE, and I was not able to be in the final list, so I decided to make the second attempt. Okay. So, Ayush, I would like to ask you, like, engineering services exam is not like an exam key you prepared one day and you went for the exam. It is a whole journey because a very big syllabus is Definitely. there. So, I would like to ask you, ki, what was the inspiration behind preparing for this exam? And also, after that, I would like to ask you what and how, means how you have done this preparation and what were the sources you have utilized for that. So initially, when I joined the college, then I looked for the opportunities I had in mechanical engineering. So I asked to the seniors and the professors in the college. So they told me about the three options. First is to have a placement from the college, and then you can have a higher studies. And third option, they told me that you can join engineering services or PSUs from GATE. So this option looks like hard for other students, that it needs a lot of hard work apart from the college academics. So for me, I thought this is the thing, and I should be there. It's just because for me, my parents also told me that IES is a service which you can do by being an engineer, and you can contribute to the country from your technical knowledge. So then, sir, I thought I should do this. Then afterwards, sir, I look for मेरे पास क्या-क्या सोर्सेस हैं। तो सेकंड ईयर में so I went for the books, straight the books which we use in the college. So we have Timoshenko, then sir in thermodynamics we have PKNR. So I read those books. सर इस मोटिव से नहीं पढ़ रहे थे कि लाइक आई हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन, आई वाज जस्ट स्टडीइंग टू हैव द इन्फॉर्मेशन, अपने कंसेप्ट्स को अच्छे करने के लिए, समझने के लिए क्या सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैंने सर एज ए नॉलेज के लिए उसको पढ़ा था, तब ऐसा वो नहीं था। देन सर इन 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 फोर्थ सेमेस्टर जब से कोविड का पीरियड आया 2022 में, सॉरी 2020 में मार्च के टाइम पे, एट दैट टाइम मुझे लगा काफ़ी सारा टाइम है मेरे पास, एम्पल ऑफ टाइम है, कॉलेज भी ऑनलाइन हो रहा है, तो आई शुड यूटिलाइज दिस टाइम। तो देन आई जॉइंड द बायजूस एग्जाम प्रेप। ऑनलाइन वे में यूज़ करना था, तो बायजूस एक अच्छा ऑप्शन दिखा मुझे, और फ्रॉम दैट सर वहाँ से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर ली। क्योंकि जब बुक से खुद से पढ़ते हैं तो एक डायरेक्शन नहीं मिलता है कि कैसे कितना पढ़ना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है। तो जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो वहाँ से आई गॉट द गाइडेंस फ्रॉम यू टीचर्स। देन वहाँ से सर प्रिपरेशन एक सर अभी तक प्रिपरेशन एक सोच था कि मुझे ये करना है, और फाइनल ईयर से वो सोच एक एक्शन में बदल गया। सॉरी, Okay. फाइनल फोर्थ सेमेस्टर से। So, I feel 2 year student of Byju's Exam Prep. So, how was your journey at Byju's Exam Prep? You enjoyed the way how the classes were happening. What were the यस things सर, you enjoyed a lot? यस सर, डेफिनेटली आई एन्जॉयड द क्लासेस। बायजूस में सर सबसे अच्छी चीज़ थी जो उस टाइम पे मुझे लगी, क्योंकि जब कोविड आया था तो नया-नया मेरे लिए ऑनलाइन लेक्चर का जो एक वो था, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि ऑनलाइन भी क्लासेस हो सकती हैं। तो लाइव क्लासेस का सर उस टाइम पे था, तो आई जॉइन्ड द लाइव क्लासेस। तो उससे घर पे एक आई आई गॉट द डिसिप्लिन टू अटेंड द क्लासेस फ्रॉम द दोज़ टाइमिंग व्हिच द बायजूस इज़ प्रोवाइडिंग मी। तो डिसिप्लिन मेंटेन हो गया कि क्लास उसी टाइम पे करना है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है इफ इन केस अगर आपका कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया या आप बिज़ी हैं,
बट आई थॉट कि लाइव इज द फर्स्ट ऑप्शन, और उसको ऑफलाइन की तरह ही मैंने अटेंड किया सर। आई यूज टू मेक द लेक्चर्स, मेक द नोट्स, जैसे हम क्लास में करते हैं ऑफलाइन क्लास में, वैसा ही सब कुछ सेम किया। और क्लास के बाद क्विजेस होती थी बायजूस में, जस्ट आफ्टर द क्लास। तो क्विज देने से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो आज मैंने पढ़ा वो मुझे याद है, और नहीं भी याद है तो क्वेश्चन मैंने रिवाइज कर लूंगा, तो मुझे वो पार्ट अब याद हो गया। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक अ, जो मेरा सोच था, जो मेरा एम था, वो एक्शन में बदल गया, तो धीरे-धीरे वो पार्ट ऑफ द जर्नी हो गया, तो उसमें भी मज़ा आने लग गया। फिर क्योंकि ईएससी बहुत लंबा एग्ज़ाम है, और मैंने स्टार्ट भी बहुत अर्ली किया था, थर्ड ईयर के स्टार्ट में, सेकंड ईयर के लास्ट में, तो मेरे लिए तो एक बहुत लंबा जर्नी था। तो इन दिस वे आई एन्जॉयड द प्रोसेस। तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क आयुष, क्योंकि ये जर्नी थी और काफी लंबी जर्नी, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू तक गए और यस बाय सर। चांस ही वो तो मतलब फाइनल लिस्ट में उस समय नाम नहीं था। तो और इस बार तो आपका खैर अच्छा रैंक भी है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन दैट एंटायर जर्नी व्हाट वर योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया एंड व्हाट वर योर वीकेस्ट एरिया? कहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग देखते और कहाँ पर अपने आप को वीक देखते थे? Sir, the strongest part was I was not distracted by uh, other opportunities I had. Like in the placements we have peer pressures कि बाकी दोस्तों का प्लेसमेंट हो रहा है, अच्छे-अच्छे पैकेज पे हो रहा है। लाइक मेरे कॉलेज में सर जो सॉफ्टवेयर फील्ड है उसमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती है हमारे कॉलेज से। तो बहुत लोग के अच्छे-अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो ऐसा बहुत बच्चे डर जा रहे थे कि हम गेट देंगे, ईएसटी देंगे, होगा नहीं होगा, बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो फिर थोड़ा-थोड़ा डाइवर्ट हो जाके अपना प्रिपरेशन छोड़ के ईएससी गेट छोड़कर सॉफ्टवेयर में कोडिंग करने लग जाते हैं। तो वो भी उनके लिए सही है, बट फॉर मी आई वाज़ लाइक आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टू माय प्लान, और खुद पे एक सेल्फ बिलीफ था। तो ये सब मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था कि ऐसे तुरंत क्विट नहीं कर रहे हैं। और दिस थिंग्स आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स, एज़ आई एम ऑलवेज़ फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज़ डूइंग स्पोर्ट्स। आई एम अ नेशनल प्लेयर इन जूडो एंड आई वॉन सिल्वर देयर। तो सर स्पोर्ट्स से मैंने वो सीखा था, तो ये मेरा सर स्ट्रॉन्ग पार्ट था। एंड सर वीक पार्ट वाज़ कि थोड़ा-सा अच्छा मेरा भी था, सिचुएशन ने भी उसको एक बना रखा था कि आई वाज़ अलोन एट होम। तो घर पे जब अलोन रहते हैं तो काफ़ी सारी वो एक पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है, एज़ इन लाइक ऑफलाइन कोचिंग में जो होता है। तो थोड़ा-सा ऐसा प्रोक्रास्टिनेशन वाला हो जाता था कभी-कभी कि ये वाला चीज़ है, कोई लेक्चर अगर पीछे का मिस हो गया बिकॉज़ ऑफ कॉलेज एग्ज़ामिनेशंस और एनीथिंग, तो उसको मैं शेड्यूल कर रहा हूँ खुद से कि कर लूँगा, बट हो नहीं पा रहा है, वो डिले होता जा रहा है, बैकलॉग होता जा रहा है। जो लाइव क्लासेस है वो तो चल रही है, बट जो पीछे का बैकलॉग है, वो बैकलॉग बनता जा रहा था। तो इन दैट, और कुछ सब्जेक्ट्स थे तो मटीरियल साइंस वगैरह जिनमें मैं थोड़ा-सा स्टार्टिंग से वीक था। तो ये सारी सर वीकनेस थी, जिनको टाइम के साथ ओवरकम करना पड़ा। ठीक है। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा आयुष की, व्हाट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन? उस समय पर मोटिवेशन क्या रहा ड्यूरिंग दिस जर्नी कि आपने उसको मेंटेन रखा तभी आप आज पहुंच पाए हो अपने मुकाम पे? So the motivation, sir, was my father, sir. Sir, when I was in 12th, तो उस टाइम से ही used to tell me कि you have to be, if you are going for engineering, you have to be IAS. So this is the best service you can have in engineering. So sir, that thing, जैसे सर बाकी बच्चों को कॉलेज में आके वो एक्सप्लोर करते हैं कि आईएएस एक ऑप्शन है। तो सर मुझे एक आइडिया तो था व्हाट इज आईएएस एंड हाउ यू, उसके लिए एग्जाम क्या देने होते हैं। सिलेबस का एक रफ आइडिया तो नहीं था, बट सर इतना पता था पेपर्स होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, इतना बेसिक सर पता था। तो सर दैट थिंग वाज़ माय मोटिवेशन। माय फादर यूज्ड टू टेल मी, ही यूज्ड टू रिमाइंड मी, हर कुछ महीने पे याद दिला देते थे आईएएस कैसा चल रहा है प्रिपरेशन। तो सर इन दैट वे आई प्रोसीडेड। तो इन दैट केस तो जर्नी और भी बड़ी हो गई। यस सर। तो आयुष, आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू कि obviously in any exam, any competitive exam preparation journey, interview is there, written is there, obviously all these stages you have to cross, and for that you need to appear like for the test series also you have appeared mock test also. So what do you find the roles of the test series for this ESC examination for prelims and mains both? Sir, I feel like test series is the very much important part for any examination which you are appearing for. And for uh, prelims के time पे sir, nowadays the gate examination and ESC prelims are being held more around at the same time. सो उस टाइम पे सर बेसिकली हम टेक्निकल पार्ट जो गेट की प्रिपेयर करते हैं, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स है, वो उसका जो मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, तो वो सर आई यूज्ड टू गिव alternate, like this time I am giving a gate test series, then the next week I will give the ESC test series. So in this way I used to manage these both things, और दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चल सकता है सर। एंड sir, for my mains test series, as I was doing online batch of Byju's, so sir, I used to write the paper and scan copy I used to send to the team.
देन सर मुझे आंसर्स आते थे कि लाइक व्हाट आई हैव इवैल्यूएटेड एंड व्हाट आई हैव स्कोर्ड, दैट वे इट वाज गोइंग. Yes, so Ayush, I feel you have done both in GATE and ESC. So definitely, this is a good guidance. Ki yes, both you are the example that both can be done simultaneously. Because your GATE rank is also good and ESC also you qualified. And last year also you were almost selected. I feel because you were saying also that you get some of the mail regarding that joining also. But yes, finalist at that time name was not there. But this time you cracked it with a very good rank. सो आयुष आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू कि थोड़ा सा बैच की यादों को भी ताजा कर लेते हैं। मुझे याद है हम जब मतलब जब आप आए थे, मैं जब आपके बैच में आया था तो आई रिमेम्बर कि मैं नोट्स भी आपसे शेयर किया करता था ताकि आप वो बाकी क्लासेस में शेयर किए करें। तो मैं वैसे ही जानना चाहूंगा आपके, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैचेस बाईजू पे चलते हैं, तो आपके बैच में कौन कौन से फैकल्टीज ने सब्जेक्ट्स लिए थे? सर मेरे बैच में सर मेजरली लाइक अराउंड 5-6 सब्जेक्ट्स यू हैव टेकन, एंड सो सोम, एमडी, प्रोडक्शन, टोम, सर देन so these all subjects were taken by you only. इंडस्ट्रियल आल्सो आई Yes, हैव sir. टेकन, आई Yes, sir. Industrial. रिमेम्बर। Yes, sir. Industrial also. Sir, the mix. So then afterwards, Sir Chandrasekhar sir, he also took fluid, and Sir Suraj Gopi sir, उन्होंने सब मैकेनिक्स लिया, और सही ट्रांसफर लिया. तो सर और सर राकेश तलेजा सर, उनका सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि उन्होंने सर मैथ्स और एप्टी पढ़ाया. सर मैथ्स और एप्टी ऐसा चीज़ है जो लाइक राइट नाउ आई मीन एचपीसीएल, तो एचपीसीएल में भी सर एप्टी एप्टी था 85 क्वेश्चंस. तो वो मैंने जो एक चीज़ उनसे पढ़ी तो वो हर एग्जाम में काम आता था. तो सर ये सब एप्टीट्यूड क्लासेस एप्टीट्यूड मुझे. प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल द एग्जाम। गेट में भी है, ईएससी में भी है, पीएसयू में भी है, यस. जगह है। तो ये तो एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज है। तो आपको मतलब जो क्लासिकल सेट मिला वही अभी भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि राकेश तलेजा सर मैथ्स एप्टी लेते हैं। वो अभी भी मतलब सभी ब्रांच के लिए रहता है, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉमन ऑल्सो। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे थे तो लास्ट के 2 वीक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 2 वीक्स? इन द लास्ट 2 weeks, what I did was कि सर जो भी टेस्ट मैं दे रहा था फ्रॉम लास्ट 2 months और उससे जो पहले से, so I used to make the a chart note. Basically, on a chart, I used to make the notes about like what I am doing mistake. तो जो भी सर मैं गलतियाँ करता था उसको चार्ट पे लिख देता था. उसका जैसे सर मुझे याद है डिफ्लेक्शन में आई यूज्ड टू, सर मैं टेस्ट दे रहा हूँ डिफ्लेक्शन, मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे. जो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला होते हैं, जो स्लोप के फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है 24 है या 48 है, ये कुछ नंबर्स में ऐसे कन्फ्यूजन आ जाता है. तो जैसे वो कन्फ्यूजन आया तो टेस्ट के बाद मैंने वो उसको मिस्टेक को नोट किया और उस चार्ट पे मैंने एक फिर से वो टेबल बना लिया डिफ्लेक्शन का. ऐसे ही कुछ सर मिस्टेक लेट्स से एमडी में हो रहा है, ब्रेक्स वाले फॉर्मूलाज में या किसी में, तो उसको फिर से उस चार्ट पे लिख दिया. तो ऐसे-ऐसे करके जब सर एग्ज़ाम से 2 वीक्स पहले की बात करें तो मेरे पास 7-8 चार्ट बन गए थे, लाइक सब बिग साइज़ चार्ट. तो वो 7-8 चार्ट्स हो गए थे. तो एक चार्ट को सर रिवाइज़ करने में 15 टू 20 मिनट्स लग जाते थे. तो 8 चार्ट है तो सर उसमें ही 2-3 घंटा निकल जाता था मेरा, 8-10 चार्ट करते-करते. तो मेरे लिए सर लास्ट में बस वो चार्ट ही था. सर फॉर प्रीलिम्स पार्ट आई एम सेइंग, दिस वाज़ फॉर द प्रीलिम्स एंड गेट एग्ज़ामिनेशन. मेंस के टाइम पे सर मैंने कुछ क्वेश्चन्स, सेट ऑफ क्वेश्चन्स अपने सेव कर लिए थे. हर सब्जेक्ट में थोड़े-थोड़े 10-10 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लगे मुझे कांसेप्ट वाइज़. तो और जो टेस्ट सीरीज़ मैंने लिखे थे उसमें से बुकमार्क कर लिया था. तो मेंस के टाइम पे मैंने सर जैसे कोई सब्जेक्ट मुझे रिवाइज़ करना है तो आई यूज्ड टू सॉल्व ओनली दोज़ क्वेश्चन्स. तो देन इन दैट वे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि ये सब्जेक्ट मेरा क्लियर हो चुका है. क्योंकि लास्ट 2 वीक में सर ज़्यादा टाइम नहीं था तो इन दिस वे आई मैनेज्ड. So Ayush, one more thing I would like to ask, you also appeared for the mock interview. So did यस you सर. find that useful? Because after that you have given the original interview and then got selected. So did you find that mock was useful for you? Definitely some mock is always useful for the interview. Uh, so this time last year, sir, when I appeared for the examination, mock से सर थोड़े से similar questions आए थे इंटरव्यू में. Not exactly but still similar. But sir this year बहुत unexpected था. सर मॉक से एकदम ही अलग आया था. बट सर मॉक का एक ये फायदा था, एटलीस्ट आई वाज एबल टू सस्टेन देयर. आई वाज एबल टू गिव द आंसर्स बिकॉज़ व्हेन यू आर एक्चुअली अटेंड फॉर द मॉक देन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट हम पहले से एक बार फील करते हैं कि वो कैसा प्रेशर रहता है. तो डेफिनिटली हेल्प तो हुआ सर, बट ये तो अनएक्सपेक्टेड कभी भी हो सकता है. सो हाँ, दैट वाज़ अ गुड थिंग. आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू अपीयर फॉर द मॉक. कुल मिला के मतलब हम ये कह सकते हैं कि मे बी चाहे सेम चीजें ना आए, बट वो आपको उस प्रेशर को झेलने के लायक जरूर बना सकता है।
तो यस ये सर, यस सर, कि मतलब आपको भले ही सेम चीज ना पूछी जाए, बट डेफिनेटली उस एनवायरनमेंट के लिए आप फेमिलियर हो गए एक तरह से। यस सर, हम रेडी हो जाएंगे सर उसके लिए। सो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आयुष की, जैसे आपने अपनी स्ट्रेटेजी तो बताई ही। सो कोई सजेशंस अगर आप फ्यूचर एस्पायरेंट्स को देना चाहे ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, वो किन बातों का ध्यान रखें, पहली बात। और दूसरा, कोई लर्निंग्स आपकी हो जो आपको लगता हो कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की, अगर मैं वो नहीं करता तो शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कुछ और रैंक ले आता, या फिर इस बार भी अच्छा रैंक ले आता, तो ऐसा मतलब इससे भी अच्छा रैंक ले आता। ऑलरेडी 30 रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई स्टूडेंट मेंस भी निकाल लेता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ सीट्स आती है पूरे इंडिया लेवल पे, उसके हिसाब से अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने मेंस तक भी निकाला है तो आप तो खैर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे हो। तो एनी थिंग फॉर फ्यूचर एस्पायरेंट्स। यस सर। सर द फर्स्ट थिंग इस एग्जामिनेशन के लिए नेसेसरी है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एग्जामिनेशन। आप 1 ईयर का एग्जामिनेशन ही होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, और 1 साल आप प्रिपरेशन करते हैं, तो बेसिकली इट टेक्स 2 years ऑफ टाइम मिनिमम। तो फॉर द 2 years एक कंसिस्टेंसी होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, द थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज टू हैव द परजिवेरेंस, क्योंकि सीट्स जैसा आप बता रहे सर बहुत कम आ रही है, तो एक टारगेट लेके वी कैन नॉट गो कि इस साल ये सी निकाल लेंगे, देन नेक्स्ट ईयर आई विल डू दिस थिंग। लाइक एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ना हो, तो देन यू हैव टू बी रेडी टू अपियर फॉर द सेकंड ईयर, फॉर द सेकंड टाइम। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हमने प्रिपरेशन की और नहीं हुआ सिलेक्शन, तो वो मेरा सब हार्डवर्क एज इन यूटिलाइज करना है नेक्स्ट ईयर। तो इस चीज के लिए रेडी रहना है। थोड़ा सा एग्जाम परसिवियरेंस डिमांड करता है, सो यूपीएससी ऑलवेज डिमांड्स परसिवियरेंस एंड हार्डवर्क, सो यू हैव टू बी गिव दैट थिंग। एंड द सेकंड थिंग विच आई से कि जो मैंने गलती की, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनी अदर। कि लाइक हम ग्रुप में प्रिपेयर करते हैं 4-5 लोग, तो किसी का हो गया आपका नहीं हुआ, तो इस कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तो उस बात को लेके है कि वो तो मेरे जैसा ही था। तो ये सब चीजें नहीं रखनी है, सेल्फ कम्पीट विथ योरसेल्फ, वो आपके फ्रेंड है, अच्छा वो अच्छी बात है। और एक और चीज आई सजेस्ट कि लास्ट चीज जो मैंने गलती की थी, लास्ट ईयर से मैंने मेकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, कंप्लीटली सब लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस। सो ऑल्दो मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए थे, बट प्री में उसका सर भुगतान करना पड़ा। सो हैड इट बीन आई हैव रेड दैट, तो मेरा वो 10-11 नंबर से जो छूटा था वो हो जाता। तो और मटेरियल साइंस सर ऑल्सो, तो कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। एक अच्छा वेटेज है सब्जेक्ट का, तो देन यू शुड डू इट एटलीस्ट। बेसिक बेसिक अगर टाइम नहीं है, बट यू शुड डू इट। टाइम कैसे नहीं रहेगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, यू विल डेफिनेटली हैव द टाइम। वैसे मटेरियल साइंस को हमेशा अंडररेटेड रखा जाता है, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैं हमेशा से नो कहता रहा हूँ मटेरियल साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है। और लास्ट ईयर अभी रिटर्न एग्जाम जो हुआ भी था, जैसे जो आपने दिया था, उसमें यस सर, मटेरियल साइंस से वेटेज काफी ज्यादा था, बट बहुत बहुत ही था। बाहर से भी क्वेश्चन आए थे, जिसके यस कारण सर, कट ऑफ रिटर्न का काफी घटा है। यस मतलब ट्रू। अगर आप देखेंगे तो मतलब 220-25 जाने वाला या 250 तक जाने वाला अभी 200 से भी नीचे रहा। तो उसका कारण कहीं ना कहीं वही था कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वो आउट ऑफ कोर्स भी बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें घबराना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो सभी के लिए आउट ऑफ कोर्स था। हमें याद है जब हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे, तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब आप मटेरियल साइंस में मतलब देख रहे हो बुक में ही कौन से चैप्टर का पार्ट है। इट वाज लाइक हाँ दैट, यस। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे। तो सर क्योंकि एक मतलब क्वेश्चन सर एक एक मुझे सर याद है सर, कास्ट आयरन का क्वेश्चन था एक। तो हम्म, सर वो क्लास में सर, जैसे मुझे याद है क्लास में सर आपने ही पढ़ाया था, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में आता रहता है रिपीटेडली। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेनिफिट कर जाते हैं एग्जाम में, अगर कुछ ऐसा देखा सा आ जाए तो। हम्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है मतलब मटेरियल साइंस को आप हल्के में नहीं ले सकते, ये तो है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ईएससी में तो वैसे भी जाना था, और लास्ट ईयर तो गेट में भी देखा कि मतलब भारी भरकम 4 नंबर का मटेरियल साइंस आया, जबकि पहले 1 या 2 नंबर का एक्सपेक्ट होता था। तो हाँ डेफिनेटली ये एक अच्छा आपने बताया है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम बस इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। अगर इसके अलावा आप कुछ और शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स के साथ, कोई भी चीज आपकी जर्नी से रिलेटेड, या फिर आपको कोई क्लासरूम का एक्सपीरियंस को याद हो, कुछ भी यस सर। आप कर सर मुझे एक सकते हैं। सर लाइन याद है सर, यू टोल्ड मी इन द क्लास, यू टोल्ड लाइक एवरीवन इन द क्लास कि if you are preparing for GATE, then you will be selected in GATE. If you are preparing for ESE, then you will be selected in ESE. If you are preparing for both, you will be selected in both. तो ऐसे बाइफर्केशन नहीं रखना है कि गेट देना है, ESE देना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ, देन यू विल बी सिलेक्टेड इन बोथ। इट्स जस्ट दैट कि सेल्फ बिलीफ रखना है और खुद में, एंड वो परसिवियरेंस चाहिए, देन
It is a long basically it is a journey as you told sir. तो जर्नी को एंजॉय करना है, जस्ट दैट कि जो रिजल्ट आ रहा है उस पे फोकस नहीं करना है कि होगा नहीं होगा होगा। जो जर्नी है उससे हम काफी कुछ सीख जाएंगे कि एट द लास्ट हम ऐसे कुछ तो मिल ही जाएगा। इफ इन केस ये सी ना हो देन बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ तो और हो जाएगा। डेफिनेटली आयुष, तो आपको मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑलरेडी एग्जांपल भी लेता रहता हूँ कि जैसे आपने दोनों एग्जाम में किया है, जो भी मेरे ख्याल से हमने अभी एक शायद आपका सेशन भी आपने लिया था हमारे जो बैच वाले, करंट बैच वाले, तो Yes, वो sir. स्टूडेंट्स को भी मैंने जब इन्फॉर्म किया तो दे वर आल्सो वेरी हैप्पी। अब आप इंस्पिरेशन हो उनके लिए कि हम भी ऐसा ही करेंगे कि दोनों एग्जाम में बढ़िया रैंक लाना है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस आयुष, Thank you, क्योंकि sir. ये बहुत बड़ी सक्सेस है और डेफिनेटली मेड प्राउड टू योर पेरेंट्स और us और all the faculties Byju's exam prep and all. So guys, this was the journey of Ayush. I feel you enjoyed and you can learn the important things, whatever Ayush have told, what are the mistake you need to avoid for the final selection. And I hope you all have benefited from this session. So goodbye for this particular video.